हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो जानने वाले हैं वो प्रॉब्लम ऐसी है कि वो किसी भी भारतीय को खतरे में डाल सकती है, और वो है आफ्टर H1B वीजा ट्रम्प्स मागा सपोर्टर्स अपोज OPT program, and we will know all things in today's class or video. First of all, we will know all things in English, and thereafter we will know all things in Hindi also. Friends, we will know what is the OPT program, types of OPT, and what is STEM, STEM. Friends, first of all, we will know about the OPT, for which the Trump is so much afraid for this program. Friends, the OPT program enables international students holding F1 visa to work for up to 12 months in fields directly related to their area of study as stated by the US Citizenship and Immigration Services USCIS. Students who have completed at least one academic year of full-time study in the US are eligible to apply for OPT. That is the OPT system. Now, we will know there are many types of OPT, and what is the main type of OPT? Friends, these are two types: pre-completion OPT and post-completion OPT. In pre-completion OPT, this allows students to work part-time up to 20 hours per week during academic sessions and full-time during breaks. And in full and post completion OPT, this requires students to work at least 20 hours per week with the option of full-time employment. It means that post completion OPT have the most important things, that we have option of full-time employment also rather than pre-completion OPT. Friends, for those with degrees in science, technology, engineering or mathematics, it means STEM, STEM, an additional 24-month extension of post-completion OPT is available, enabling a total of 3 years of work authorization. USCIS provides a list of STEM degree programs eligible for this extension. Students must be recommended by their academic institution to apply for OPT. Once authorized, they can work under F1 visa status while participating in the program. Friends, now we will know that how many students participate in the OPT program. According to the 2023-24 Open Doors report, 2,42,000 international students, or 27.47% of the total 8,83,000 international students in the US were enrolled in the OPT program. Among Indian students, the numbers have been steadily increasing in
2023-24 as many as 97,556 out of 3,31,000 Indian students, which is the 29.42% of total, were in the OPT program compared to 69,062 in 2022-23. Friends, STEM courses remain a popular choice for Indian students largely due to the OPT extension in 2023. Around 42.9% of Indian students were pursuing STEM courses like mathematics or computer science, while 24.5% were enrolled in engineering programs. It means that Indian students have interest in STEM programs in USA. Friends, now the question is, where are MAGA supporters opposing the OPT program? MAGA means Make America Great Again. It is the policy of Donald Trump. And critics of the OPT program, particularly the STEM extension, argue that it takes job opportunities away from American workers. In 2023, the Washington Alliance of Technology Workers, WASTEC, challenged the legality of the STEM OPT extension in the US Supreme Court. Now friends, we will know about what is STEM and STEM OPT extension. As we know that STEM stands for science, technology, engineering and mathematics. Now we will know what is the STEM OPT extension. Friends, a degree earned in certain fields of science, technology, engineering and maths give you an opportunity to apply for an OPT extension known as the STEM OPT extension. You may be eligible for a 24 months extension of your post completion OPT if maintaining F1 status. Then you are currently employed and have received an initial period of regular post completion OPT employment authorization for your STEM degree. Third, you have received a bachelor's or higher degree in the eligible STEM field from a school that is listed in the designated degree program list. Next is, in certain situations, you may qualify for a STEM OPT extension if you have a recent degree in a field other than STEM and you have received a prior degree in the STEM field within the last 10 years of applying for the STEM OPT extension. You must file a STEM OPT application with USCIS during the 90 days prior to the end date of the OPT, your post completion authorization period. You are working for an employer or having a job offer from an employer that can be enrolled in E-Verify and also meets all the other requirements of the STEM OPT employer responsibilities section. A paid job or job offer that is directly related to the STEM degree study is required. It must be at least 20 hours per week. You may also be eligible for another 24-month STEM OPT extension for the higher educational
degree in the STEM field you completed if you are eligible, so that the Trump and their MAGA group oppose the OPT program. They think that if OPT program increasing day by day, the problem for the Americans will be faced by them for their jobs and their services, because the Indian will take all jobs from them if they are from STEM program field. Now, friends, we will know all things in Hindi also. दोस्तों, क्या है ओपीटी प्रोग्राम और इसे बंद करने पर लाखों भारतीयों की जिंदगियां तबाह हो जाएगी, क्यों? दोस्तों, सबसे पहले व्हाट इज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब कि ये जो है ओपीटी क्या है? दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का एक नारा था, पहले अमेरिकी, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी देश में जो कुछ होगा उसमें सबसे पहले अमेरिकी लोगों को शामिल किया जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अब H-1B वीजा के साथ साथ ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऐच्छिक व्यावहारिक प्रशिक्षण ओपीटी प्रोग्राम पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है ये ओपीटी का राग, क्या है ये ऑप्शनल ट्रेनिंग, क्या है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है क्या, इससे भारतीयों की जिंदगी कैसे तबाह हो सकती है? दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी अभियान में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, यानी अमेरिका को दोबारा महान बनाओ, और ट्रंप किसी भी हद तक जाकर अमेरिका को दोबारा महान बनाना चाहते हैं, मतलब कि अमेरिका की हालत अभी कुछ खराब है। दोस्तों, ट्रंप जब से राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं इसी नीति को लेकर उनका प्रशासन काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ट्रंप के समर्थक अमेरिका की दो नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं। पहला, जिसमें H-1B वीजा तो जग जाहिर है ही, लेकिन अब उसके समर्थक ओपीटी प्रोग्राम पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो यह जानना जरूरी है कि आखिर ये खीर टेढ़ी है क्या? ये कौन सा राग नया आ गया ओपीटी का, जिसका डर अमेरिकों को रात को सोने नहीं देता और सुबह जागने नहीं देता? तो कौन सा है वो? तो दोस्तों, जान लेते हैं क्या है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, अमेरिका में करीब हर साल दुनिया भर से करीब 10 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, यह सही बात है। इसके बाद ओपीटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से अंतरराष्ट्रीय छात्र अस्थायी तौर पर अमेरिका में रहकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच यह प्रोग्राम काफी लोकप्रिय है और इसका लाभ पाने वालों में सबसे बड़ा नाम इंडियंस का है। दोस्तों, ओपीटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के बाद एक सीमित समय के लिए काम सीखने का मौका भी देता है। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो यह प्रोग्राम छात्रों को कम समय के लिए रोजगार मुहैया करवाता है अमेरिका की सरजमी पर। दोस्तों, अब है कि इसका फायदा क्या होता है, ओपीटी का फायदा क्या है? दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई के दौरान या उसके बाद इस प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी मदद से छात्र 1 साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। ओपीटी के लिए वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास स्टडी वीजा है, F1 वीजा है। वीजा काउंसलर के अनुसार अमेरिका में भारत समेत दुनिया भर से पढ़ने वाले छात्रों को F1 वीजा दिया जाता है, जिसे स्टडी वीजा भी कहा जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि अमेरिका में ग्रेजुएशन 3 साल की बजाय 4 साल की होती है।
मतलब 4 साल की आपका ग्रेजुएशन होगा। वही मास्टर डिग्री में 2 साल लगते हैं। अगर ओपीटी प्रोग्राम नहीं होगा तो छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद अपने देश लौटना ही होगा। लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद छात्र आमतौर पर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओपीटी के लिए अप्लाई कर देते हैं और इसमें उन्हें साल भर तक काम करने का मौका मिल जाता है। ओपीटी के दौरान छात्र उसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है। अब है अमेरिकी क्यों विरोध कर रहे हैं, उन्हें क्या डर सता रहा है? यदि ओपीटी प्रोग्राम आगे चलता रहा तो इससे क्या होगा? दोस्तों, अमेरिका में यूएस टेक वर्कर्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपीटी के खिलाफ खुलकर लिख रहे हैं और इस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। यूएस टेक वर्कर्स रोजगार के लिए चलाए जाने वाले वीजा प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका वासियों का एक प्लेटफॉर्म है। इस पर एक यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ओपीटी H1B वीजा से भी ज्यादा खतरनाक है, जो अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरियां खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारतीय है वो उनकी नौकरी खा रहे हैं ओपीटी की आड़ में। दोस्तों, उन्होंने ओपीटी के तहत काम करने वाले छात्रों को सैलरी में मिलने वाली टैक्स छूट पर भी सवाल उठाया है। दोस्तों, यदि ऐसा हुआ तो भारतीयों को क्या होगा नुकसान, यह जानना भी जरूरी है। दोस्तों, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोस्तों, ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नीति का असर कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वह बार बार कह चुके हैं कि अमेरिकी नौकरियों पर पहला अधिकार अमेरिका के लोगों का है। अगर यह प्रोग्राम ट्रंप ने बैन कर दिया तो लाखों भारतीयों पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, भारत में अमेरिकी दूतावास की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में 3.31 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई के लिए आए। इन छात्रों में से 29.42% यानी 97,556 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ओपीटी का प्रोग्राम चुना। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि ओपीटी का असर भारतीयों पर कितना पड़ सकता है। अब एक चीज और है, यह सीपीटी और ओपीटी क्या है? दोस्तों, हालांकि ओपीटी और सीपीटी के बीच कई अंतर हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए यह जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कब वे किसके लिए पात्र हैं। अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए कैंपस में अपने अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय से बात कर सकते हैं। सीपीटी आपको अपने कार्यक्रम से स्नातक होने से पहले पूरा करना होगा। ओपीटी को आप स्नातक होने से पहले या बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है पुनः एक बार फिर से कि अधर में लटका अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का भविष्य। अब H1B वीजा के बाद ओपीटी प्रोग्राम पर भी बवाल मच चुका है। तो दोस्तों, अमेरिका में पढ़ाई करने गए छात्रों को ओपीटी प्रोग्राम के जरिए देश में अस्थायी तौर पर नौकरी करने का मौका मिलता है। दोस्तों, हालांकि इस प्रोग्राम को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम के विरोध करने वाले लोगों में डोनाल्ड ट्रंप खुद और उनके समर्थक भी शामिल है। दोस्तों, ओपीटी कंट्रोवर्सी क्या है? दोस्तों, अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों को डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी का मौका भी मिलता है। इसके लिए देश में ओपीटी नाम से प्रोग्राम चलाया जाता है। हालांकि अमेरिका में चल रहे H1B वीजा के बाद विवाद के बाद अब ओपीटी भी निशाने पर आ गया है। इसके विरोधियों का कहना है कि इसके जरिए विदेशी छात्र अमेरिकी लोगों की वजह से उनकी नौकरियां खा रहे हैं, उनकी जगह ले रहे हैं नौकरियों में। और दोस्तों, भारतीय छात्र ओपीटी के जरिए नौकरी हासिल करने में सबसे आगे है। यूएसए का जो स्टूडेंट ग्रुप है उसे सबसे ज्यादा तादाद है वो भारतीयों की है।
दोस्तों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैक अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा आंदोलन के समर्थकों ने ओपीटी का खुलकर विरोध किया है। ओपीटी प्रोग्राम उन छात्रों के लिए बड़े काम की चीज है जिन्हें H1B वीजा हासिल करना है। इस प्रोग्राम के जरिए विदेशी छात्र अस्थायी तौर पर अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। अभी अमेरिका में विदेशी वर्कर्स और अमेरिकी नौकरियों को लेकर काफी बहस चल रही है। यह प्रोग्राम भी अब इस बहस का मेन मुद्दा बन चुका है। मागा समर्थकों ने कहा है कि यह प्रोग्राम हमारी नौकरियां छीन रहा है। दोस्तों बात आती है कि क्या है ओपीटी। दोस्तों ओपीटी प्रोग्राम F1B वीजा पर पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को 12 महीने तक नौकरी करने का मौका देता है। यह नौकरियां उन्हीं फील्ड्स में की जा सकती है जो उनकी पढ़ाई से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा यह खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि स्टेम के तहत यदि ओपीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 3 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलता है। जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स मतलब स्टेम फील्ड से ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को 24 महीने का अतिरिक्त ओपीटी मिलता है। इस तरह वे कुल मिलाकर 36 महीने या यूं कहें कि 3 साल तक अमेरिकी लोगों के सर पर बैठकर नौकरी कर सकते हैं। H1B वीजा के लिए आवेदन के समय यह 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस काफी काम आता है। बात आती है ये कि H1B वीजा 3 सालों के लिए मिलता है। इस तरह डिग्री हासिल करने के बाद स्टेम फील्ड के ग्रेजुएट्स 6 साल तक अमेरिका में नौकरी कर पाते हैं। और भारतीय स्टूडेंट को ओपीटी प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा मिला है। बिजनेस टुडे के मुताबिक 2023-24 में लगभग 98,000 भारतीय छात्रों ने ओपीटी का फायदा उठाया है। दोस्तों जो अमेरिका में पढ़ने वाले कुछ भारतीयों का 29% है। दोस्तों सबसे ज्यादा इंडियंस आ गया ओपीटी में भी, इसका फायदा उठाने में भी। दोस्तों इनमें से ज्यादातर स्टेम कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और कर चुके थे, जिससे उन्हें स्टेम ओपीटी एक्सटेंशन मिला। स्टेम ओपीटी का एक बार हम आपको वापस बता देते हैं। जहां नॉर्मल स्टडी करने वाले स्टूडेंट को ओपीटी में 1 साल के लिए अस्थायी जॉब करने का अधिकार होता है या वो कर सकते हैं, वहीं स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की स्टडी करने वाले बच्चों को 2 साल का एक्स्ट्रा वर्किंग वीजा मिलता है वहां पे काम करने का, अस्थायी तौर पर कर सकते हैं। और दोस्तों क्या होता है, 3 साल तो ये हो गए, ठीक है, और 3 साल आपका H1B वीजा हो गया, तो 6 साल के बाद वहां पे आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे। इसलिए वहां का प्रशासन ही नहीं, वहां के लोग, मागा के समर्थक सब कुछ चिंतित है, बवाल मचा हुआ है कि इसी तरह से यदि भारतीयों की तादाद बढ़ती गई तो अमेरिका एकदम इंडिया बन जाएगा, उनको यह लग रहा है। तो दोस्तों ओपीटी विरोधियों ने क्या कहा है वो जान लेते हैं जाते जाते। आलोचना का तर्क है कि ओपीटी खास तौर पर स्टेम एक्सटेंशन अमेरिकियों की नौकरी के अवसरों से वंचित कर रहा है। 2023 में वाशिंगटन अलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी वर्कर्स ने ओपीटी प्रोग्राम को अदालत में चुनौती भी दे डाली थी और आरोप लगाया कि यह अमेरिकी वर्कर्स को कमजोर कर रहा है। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्राम को वैलिड मानने वाली निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मामले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों अब बात जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्या कहा। उनके कार्यकाल के समय स्टेम एक्सटेंशन की अवधि को 29 से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया। दोस्तों पहले 29th मंथ था, लेकिन उन्होंने अपनी जो भारतीयों को खुश करने के लिए, वहां के वोट बैंक को हासिल करने के लिए उन्होंने इसे 36 मंथ कर दिया स्टेम वालों के लिए। दोस्तों इसे लेकर विवाद की शुरुआत होती है। दोस्तों मागा समर्थकों का कहना है कि अमेरिकी लोगों को जिन नौकरियों को करना है उन्हें करने के लिए विदेशियों को रखा जा रहा है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार है और खासकर इनमें आगे है अमेरिकन स्टूडेंट्स। दोस्तों वे इस प्रोग्राम की खामी भी बताते हैं। अगर ओपीटी प्रोग्राम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ भी होती है तो इसका सीधा असर भारतीय छात्रों पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों सोचना यह है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है, उसको तो कोई छीन सकता नहीं है, लेकिन
हम तो यही कह सकते हैं कि ओपीटी के साथ कोई छेड़खानी ना हो, और इसके लिए एलन मस्क खुद कह चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी वीजा के कानून में नहीं होगी। राधा स्वामी भी कह चुके हैं कि यदि होती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि एलन मस्क कह रहा है कि मेरे को किसी से भी कोई एतराज नहीं है यदि उसका आईक्यू लेवल अच्छा है तो। और आप सब जानते हैं कि आईक्यू लेवल इंडियंस का कितना आगे है। तो दोस्तों चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी है तो हम वहां काम भी कर सकते हैं। और इसका फायदा उठा रहा है चाइना। पता है आपको, चाइना ने ओपीटी के लिए 3 नई स्कीम्स निकाल दिया बच्चों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर। तो दोस्तों जानते हैं एक नया टॉपिक कल इसी समय इसी मंच पर। लेकिन दोस्तों आपको जानना है इस वीडियो के जरिए कि ओपीटी क्या चीज है और क्या बवाल मचा है अमेरिका में इस ओपीटी के ऊपर, और ओपीटी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है बाहर पढ़ाई करना, और ओपीटी कितना महत्वपूर्ण है, और स्टेम क्या है। आपको जो नव स्टूडेंट है, नई पीढ़ी है, उन्हें स्टेम में जाना चाहिए। और स्टेम क्या है वो तो परम क्लास से आपको बता ही चुका है। दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।